Hello friends, welcome to this educational blog. So today I'm going to give details about salary components that is present in a salary slip, or what are the um, components component head that is present in a salary. So let's start. So there are few components in salary which are optional, like ESIC is a optional salary component, and um, like 95% of the salary components, they are compulsory, mandatory. Only 2 or 3 salary components, they are optional or changeable. So let's see. So first and foremost important salary component is the basic salary plus DA, that is dearness allowances. So basic salary is actually 50% of the gross salary. And what is gross salary? See, if we count the gross salary, there are gross salary ends to, it starts from the basic salary, then there are allowances, then there are PF deductions and medical insurance deductions, and all these includes in the gross salary. So whatever gross salary comes, जो gross salary means, gross salary actually किसका inclusion होता है? Basic salary का, then allowances का, HRA का, PF का and medical allowances का. So इन सब का inclusion gross salary होता है. So priorly the payroll executive or the payroll associate always knows about that this will be the gross salary of a particular person for this particular position. तो वो gross salary उसको ऑलरेडी ये अंदाज़ा रहता है, ये एस्टिमेशन रहता है कि इतना ग्रॉस सैलरी आएगा एक पर्सन का. सो उस ग्रॉस सैलरी का 50% ऑफ ग्रॉस सैलरी इज़ ईजी फॉर दैट पर्सन टू कैलकुलेट, एंड उससे ही वो बेसिक सैलरी फाइंड आउट करता है. दैट इज़ बेसिक सैलरी. ऑल्सो वन मोर थिंग टू नोट इट डाउन, दैट जो डियरनेस अलाउंसेस होता है इन सम एंटाइटीज और ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ इंक्लूडेड इन द बेसिक सैलरी, अदर while in some entities and organization it is separately mentioned. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डियरनेस अलाउंसेस बेसिक सैलरी के साथ ही इंक्लूडेड होता है, एंड देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर्स स्पेसिफिकली एंड प्रायरली गवर्नमेंट सेक्टर्स में डियरनेस अलाउंसेस सेपरेटली मेंशन होता है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज डियरनेस अलाउंसेस इन कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर्स मोस्टली बेसिक सैलरी में ही इंक्लूडेड होता है. Now basic salary is 50% of the gross salary. Now next come the house rental allowances, that is HRA. So this house rental allowances is basically is for the employee. That employee is employee उसका एक रेंट का हाउस है जहाँ वो रह रहा है. So कंपनी उसको क्या फैसिलिटी दे रही है कि जो वो रेंट पे कर रहा है, दैट रेंट इज इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय. So what happens is, according to the city tier, like metro city, non metro city में जो HRA होता है that is 40% of the basic, means basic salary का 40% जो amount है that is the HRA. basic salary का 40% amount है that is HRA. and for non metro city, but otherwise in metro city जिसमें cost of living index थोड़ा हाई है comparative to non metro cities, वहाँ पर HRA because rent is also high in metro cities, so HRA is 50% of the basic salary. Is basic salary basic का 50% निकालेंगे, that will be the HRA. So this HRA is actually इसका एक इम्पोर्टेंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है टैक्सेबल इनकम में. इन केस कि अगर एम्प्लॉय एक रेंट पर, उसका अकोमोडेशन एक रेंट पर है, सो वो HRA का the HRA amount is exemptable, tax exemptable. मीन्स उसका जो HRA का जो अमाउंट है, या HR मीन्स अगर वो रेंट पे रह रहा है, अगर एक एम्प्लॉय रेंट पे अकोमोडेट कर रहा है अपने आप को और अपनी फैमिली को, सो वो एज एन बिकॉज ऑफ द HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, वो अपने जो रेंट के जो कॉस्टिंग है, जो रेंट के जो एक्सपेंसेस है, वो अपने टैक्सेबल इनकम से वेव ऑफ करवा सकता है, या उसको एग्जेम्पशन मिल सकता है उसके टैक्सेबल इनकम से, इन दैट केस अगर वो रेंट पर रह रहा है तो. लेकिन अगर एम्प्लॉय अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी पे है या खुद के ओन प्रॉपर्टी पर वो रह रहा है, उसको रेंट नहीं देना पड़ रहा है, उसको ओन प्रॉपर्टी पर रह रहा है, तो उसको
तो उस कंडीशन पे HRA टैक्सेबल अमाउंट में इंक्लूड हो जाती है. सो HRA की ये कंडीशन है कि कब वो इंक्लूड होती है टैक्सेबल अमाउंट में, कब वो एक टैक्सेबल अमाउंट से एग्जेम्प्ट हो जाती है. अगर एम्प्लॉय रेंट पर रह रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट से एग्जेम्प्ट हो जाती है, और अगर वो इफ एन एम्प्लॉय इज staying in his property or ancestor property, so that is included. HRA means HRA amount hai that is taxable. Now next comes allowances. There are various allowances which is given by the company and which is included in the components of a salary, which is convenience allowances, medical allowances, special allowances and other allowances. Special allowances, other allowances के अलावा food coupons भी होते हैं. Then there are internet bills, means internet bills and mobile bills भी sometimes company included करती है other allowances में या special allowances में, या separately वो mention करती है. So these are also mentioned. Free nature allowances जिसको बोलते हैं FNA, free nature allowances. So these are included. So it is mentioned if company gives अगर company provide करती है वो allowances, तो in that case. So we see कि basic salary, HRA and these allowances को include कर this is the net salary and or the salary in hand. Okay, this is the salary in hand. Now next comes this is salary in hand. After salary in hand, what is included in the gross salary? Gross salary में basically जो these are the components, basic components जो deduction होता है, inclusion होता है और deduction भी होता है. Means एक तरह से ये saving है, ये एम्प्लॉय की सेविंग है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है. दिस इज द इंश्योरेंस विच इज गिवन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉय. सो प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय की एवरी मंथ की सैलरी से, जिसमें 12% एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना होता है एंड 12% एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है. एंड दिस 12% इज द 12% ऑफ PFW, दैट इज प्रोविडेंट फंड वेजेस, जिसका एक डेफिनेट डिफाइंड फॉर्मूला होता है. उस फॉर्मूले के तहत उस प्रोविडेंट फंड वेजेस का 12% कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है. एंड बेसिकली जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसका जो कुछ परसेंट अमाउंट मीन्स PF अकाउंट जो होता है, हर एक एम्प्लॉय का PF अकाउंट होता है. उस PF अकाउंट के अंदर सब 4 अकाउंट्स होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर जाता है. दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. अदरवाइज जो PF कंट्रीब्यूशन होता है या PF डिडक्शन अमाउंट जो होता है एम्प्लॉय के एंड से, दैट इज 12% ऑफ प्रोविडेंट फंड वेजेस. सो there is a condition that up to 15,000 if an employee salary if एक एम्प्लॉय की अगर बेसिक सैलरी प्लस डी अप टू 15,000 है, मीन्स अप टू 15,000 है, सो देर इज अ स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट की उसका PF डिडक्शन या PF कंट्रीब्यूशन और डिडक्शन, मीन्स उसका PF कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का डिडक्शन जो होगा अप टू 1,500 तक होगा. अदरवाइज इट विल बी टू अ सर्टेन मोर अमाउंट. आई मीन देर इज अ वन कंडीशन, अगर PF बेसिक अगर बेसिक सैलरी प्लस DA, if basic salary plus DA is up to 15,000, so PF deduction will be a fixed amount. If basic salary plus DA is greater than 15,000, then this PF deduction is to a certain amount that I will tell in some other content. So now what I want to say is यहाँ पे PF deduction है वो है 12% provident fund wages का, which is deducted from the employee salary. And ऑल्सो इसमें PF जो एम्प्लॉयर के एंड से कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 12% होता है PF वेजेस का, दैट इज बीइंग कॉन्ट्रीब्यूट बाय द एम्प्लॉयर, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय. ये ग्रॉस सैलरी में ही इंक्लूडेड रहता है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी, ये तो ग्रॉस सैलरी में ही इंक्लूड रहता है. दैट इज मैंडेटरी. या दिस इज अ फैक्ट कि समटाइम्स कि एम्प्लॉय इज नॉट गिविंग कंसेंट कि उसका PF डिडक्शन हो, बिकॉज एम्प्लॉय से इसकी उसकी सेविंग्स कुछ सर्टेन और सोर्सेज से हो रही है, उसका खुद का PF उसने अपना PF का जो डिडक्शन है उसने अपने एंड से ही अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, उसको टेक केयर करना है अपना PF अकाउंट का, उसको SIP में इन्वेस्ट करना है या और भी म्यूचुअल फंड्स और भी उसके सेविंग्स हैं. सो इन दैट केस एम्प्लॉय से इसकी नहीं, उसको PF डिडक्शन नहीं चाहिए, उसको ये पूरा पैसा जो है उसकी नेट सैलरी में चाहिए, इन हैंड सैलरी में चाहिए.
सो इन दैट केस फिर कंपनी के नेचर पे और नेचर पे डिपेंड करता है कि कंपनी उस एम्प्लॉय को हायर करना चाहती है तो वो किस कंडीशन में हायर करती है, उसका पीएफ डिडक्ट कर या नहीं डिडक्ट कर, तो वो काफ़ी डिफरेंट केस हो जाता है. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर कंपनी पीएफ डिडक्ट करती है तो सभी एम्प्लॉयज़ का पीएफ डिडक्ट करती है, और अगर पीएफ डिडक्ट नहीं करती तो फिर वो किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्ट नहीं करती है. ऑल्सो वन मोर थिंग कि पीएफ डिडक्शन, पीएफ अमाउंट है या ईएसआईसी अमाउंट है, ये इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन ईएसआईसी पोर्टल, तभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल इंश्योरेंस ईएसआईसी के तहत, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के तहत अपने एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिलीज़ को मेडिकल इंश्योरेंस दे सकती है, या एम्प्लॉय को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे सकती है. प्लस ऑल्सो दिस इज ऑल्सो कंडीशन कि पीएफ और ईएसआईसी फैसिलिटी देने के लिए एटलीस्ट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 10 मिनिमम, जो कंपनी के एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 10 to 20 होनी चाहिए. मीन्स 10 to 20 मिनिमम, आइदर 10, 20 से ज़्यादा हो इट्स वेल एंड गुड, बट 10 से अगर कम होती है तो वो ना ही पीएफ अमाउंट डिडक्ट कर सकता है, ना ही ईएसआईसी अमाउंट का कुछ डिडक्ट कर सकता है, बिकॉज उस केस में ना ही वो पीएफ पोर्टल पे कंपनी रजिस्टर करवा सकती है अपने आप को, ना ही ईएसआईसी पोर्टल पे रजिस्टर करवा सकती है अपने आप को. नाउ नेक्स्ट कम्स this ESIC, what I have told. So ESIC is the ESIC which is some contribution of the ESIC wages, like 0.75% जो होता है वो एम्प्लॉय के 0.75% ऑफ ESIC wages एम्प्लॉय की सैलरी से रिड्यूस होता है. एंड 3.25% जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, 3.25% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का. एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी ये ग्रॉस सैलरी में ही इंक्लूड होगा. कई एम्प्लॉयज इस पे क्वेश्चन करते हैं कि वो तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो फिर वो हमारी सैलरी से क्यों मिल रहा है. बट दे शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि वो वो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आपको एक्नॉलेज करवाने के लिए आपको इस सैलरी में वो इंक्लूडेड है. अदरवाइज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है कल, इफ यू से कि आपने कंट्रीब्यूट किया, हमें कैसे पता चला कि आपने इतना कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर को आप क्वेश्चन करोगे. सो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पीएफ या ईएसआईसी में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बिकॉज वो भी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी आपकी ग्रॉस सैलरी में ही इंक्लूडेड होगा. ये एक्नॉलेज आपको ग्रॉस सैलरी में, ये चीज का जो एक्नॉलेजमेंट आपको ग्रॉस सैलरी में ही मिलेगा. नाउ सो ग्रॉस सैलरी इज द, जो भी सेविंग्स है, मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड करे कंपनी अपने एम्प्लॉय को, उसका अमाउंट इंक्लूड होता है ग्रॉस सैलरी में. नाउ नेक्स्ट कम्स द ग्रेचुइटी. सो अकॉर्डिंग टू ग्रेचुइटी एक्ट, दिस इज एन एडिशनल रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉय को उनकी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए एक रिवॉर्ड दिया जाता है एडिशनल रेम्यूनरेशन के फॉर्म में, या लॉयल्टी के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है एडिशनल रेम्यूनरेशन फॉर्म में, बिकॉज एक एम्प्लॉय ने 5 years तक कंटिन्यूसली एक कंपनी को सर्व किया है. एंड दिस इज मैंडेटरी कि अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी क्लेम करना है, विदड्रॉ करना है, तो उसको उस कंपनी में 5 years तक कंटिन्यूसली सर्विस देना होगा. उसके बाद ही अगर वो उस कंपनी को लीव करता है तो वो अपनी ग्रेचुइटी को विदड्रॉ कर सकता है, क्लेम कर सकता है विद अ टैक्सेबल, मीन्स उसकी ग्रेचुइटी पे भी टैक्सेबल अमाउंट एप्लीकेबल है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अगर एक लिमिट को क्रॉस करे तो ही उसकी ग्रेचुइटी इनकम पे टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं. नाउ नेक्स्ट कम्स द बोनस. सो दिस बोनस इज, एज वी नो अकॉर्डिंग टू द बोनस एक्ट, की हर एक कंपनी को अपने प्रॉफिट का शेयर एम्प्लॉय को देना पड़ता है, कुछ परसेंट, लाइक 8.33 to 20% एम्प्लॉय को देना पड़ता है. सो नाउ इट कम्स कि अगर बोनस कंपनी दे रही है तो वो अपनी सैलरी पे क्यों इंक्लूड कर रही है, सैलरी एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर में क्यों इंक्लूड कर रही है. वो इंक्लूड करेगी बिकॉज इट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कंपनी, हो सकता है कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो कि वो अपने या कंपनी लॉसेज में हो, मे बी समटाइम्स इट हैपेंस. बट अगर वो सैलरी में इंक्लूड करती है कि उसको बोनस देना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो देना ही देना है एट एनी कॉस्ट. फिर कंपनी को अगर लॉस में होती है तो कंपनी थोड़ा शायद कम बोनस दे दे, बट उसको अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करना है तो बोनस उसको देना ही देना है इन केस. तो कंपनी उस बोनस को अपनी सैलरी कॉम्पोनेंट्स में इंक्लूड करती ही है. मतलब इट्स नॉट कि एवरी कंपनी डज दिस, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी डज दिस, कि अगर वो बोनस प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो सैलरी में उसकी जो ग्रॉस सैलरी के बाहर जो कंपोनेंट है, ग्रॉस सैलरी के बाहर का जो अमाउंट है, जो सीटीसी के अंदर जो है
अमाउंट हो उसमें वो इंक्लूड करेगी बोनस. सो this bonus is given like at time of any big festival or at time of promotion or so this bonus is applicable. So other than gross in hand and gross salary में जो main components है that is PF and ESIC, इसमें और कुछ components नहीं add on होते हैं. Also one more thing, sorry I forgot to mention, this is after this gross salary there is that professional tax, जो आपका professional tax होता है. So professional tax means like okay, so I will explain this professional tax separately in next video. So this is about the main components of the salary which is included, and according to this a salary structure is defined for each and every employee. So I hope you like it. I will give more details about these things in next video. Till then, bye bye. Thank you for watching this video.